Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. We are fine, sir. What about And what you? about you? I'm also fine, beta. And what about I'm also fine, thank you. I welcome you all in this learning session. In this session, we are going to study EVS subject, and today we will be talk about the habits of eating habits of animals. Yes. Today we will be talking about the eating habits of the animals. Habit means आप सभी को पता है क्या है? क्या होता है? Sir, आदत. आदत. आदत? खाने वाली आदत. That means कि which animals like fish thing. कौन सा एनिमल क्या खाने में उसको क्या पसंद है, उसकी आदत क्या है? आपको पता है एलिफेंट्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? व्हाट डज एलिफेंट्स लाइक? Sugar. Sugar cane. शुगर केन, गन्ना ज्यादा खाता है. इन द सेम वे व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द रैबिट, रैबिट को क्या क्या पसंद है? Sir, sir, carrot. Sir, carrot. वेरी गुड, Sir, carrot. वेरी गुड, वेरी गुड. बट बिफोर मूविंग ahead on the topic, first of all we have to revise whatever we studied in our last class. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We started to learn the types of animals. अब types of animals में we read that कि there are many types of animals. Some are terrestrial animals. तो what are terrestrial animals? Terrestrial animals किसे कहते हैं? What are terrestrial animals? ऋषभ तिवारी. Sir, animals that live on land are called terrestrial animals. Very good. Aanchal Paswan, you have to tell about the what are arboreal animals. What are arboreal animals? आंचल पासवान. दिव्यांशी बेटा आप बताइए आर्बोरियल एनिमल्स क्या है? Animals that spend most our time in trees is known as arboreal animal. Very good. Animals that spend most of their time, most of our time नहीं, हमारा टाइम नहीं, वो अपना समय व्यतीत करते हैं ना. Most of animals that spend most of their time in trees are known as the arboreal animals, such as monkeys, squirrel, chimpanzees. Okay. Aerial animals क्या होते हैं? What are aerial animals? कनिश फातिमा. Animals that spend most of the time in air. They are known as aerial animals. Animals that, उसमें आपको ट्रीज में अपना समय स्पेंड करते हैं, लेकिन ऐसे एनिमल जो अपना समय एयर में ज्यादातर स्पेंड करते हैं. एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर इज कॉल्ड द एरियल एनिमल्स. इसमें कुछ इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स भी आते हैं. बर्ड्स जिनके पंख होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका एरियल एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. Yes, At sir. the end, after the aerial animals, also we studied about the aquatic animals. Aquatic animals किसे कहते हैं? आंचल पासवान. एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में महिमा बारी आप बताइए. वीडियो ऑन करिए. एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? Animals that live on water or land are known as aquatic animals. फिर से बोलिए बेटा, फिर से बताइए. Animals that live on water or land is known as aquatic animals. That's wrong. It's wrong. Animals that live in the water, water और land दोनों पे नहीं. Animals that lives in the water are known as aquatic animals. जो सिर्फ वाटर में रहते हो. That means octopus, sea horses, fish, these are the aquatic animals. क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मतलब वाटर के अंदर ही दिखाई पड़ेंगे, कभी भी लैंड पे नहीं रह सकते. They cannot survive on the land. Okay. After the aquatic animals we talk about the amphibians. Amphibians क्या होते हैं? जो आपका लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं. Frogs, crocodile and turtles can live on land as well as the water. There are some animals that can live on the land as well as the water, as well as in the water.
They are known as the amphibians. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After that, today we are supposed to talk about the eating habits of animals. तो अभी जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो रिवाइज हो गया. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग हैबिट्स में सबसे पहले वन बाय वन यू ऑल नीड टू रीड. सलोनी जायसवाल, बेटा आप जरा माइक ऑन करिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए. Different animals have different food habits. Squirrel eat nuts while rabbit habit rabbit square rabbit eat carrot. Both squirrel and rabbit gne their food, and elephant eat grass, dishes, sugar cane, fruit, and so on. Frog and बस 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 यहीं पे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. यानी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग. डिफरेंस तो लिखा नहीं है, डिफरेंट लिखा है ये. तो डिफरेंट एनिमल्स यानी अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जानवर हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. यानी अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड हैबिट रखते हैं. यानी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फूड हैबिट हैं, अलग अलग भोजन खाने की आदत होती है. उनकी अलग अलग आदत, भोजनों की आदत होती है. स्क्वायरल ईट्स नट्स. जो स्क्वायरल है वो उनकी ईटिंग हैबिट क्या है? दे ईट नट्स वाइल रैबिट ईट्स कैरेट. लेकिन जो रैबिट्स है वो गाजर खाता है, बट स्क्वायरल जो अखरोट ड्राई फ्रूट्स है वो या बादाम खाने की कोशिश ज्यादा करता है. ठीक है. दैट मीन्स स्क्वायरल ईट्स नट्स वाइल रैबिट ईट्स कैरेट. बोथ स्क्वायरल एंड रैबिट्स नो देयर फूड. दोनों स्क्वायरल और रैबिट्स जो है नो देयर फूड, वो दोनों ही अपने फूड को क्या करते हैं? कुतर के खा जाते हैं. यानी जल्दी जल्दी दांत से काट के खा जाते हैं. ठीक है. Yes, sir. एलिफेंट ईट ग्रास. अब यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बात किया गया. एलिफेंट्स ईट ग्रास, बुशेस, सुगरकेन, फ्रूट्स एंड सो ऑन. जो एलिफेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं घास भी खाते हैं, झाड़ियां भी खा लेते हैं. एंड सुगरकेन यानी गन्ना. ठीक है. गन्ना भी खाते हैं कुछ. Yes. अगर आप फ्रूट्स देंगे, बनाना वगैरह देंगे तो ऑल्सो दे वुड बी टेकिंग इट. वो उसको भी खा सकते हैं. ओके. बट जो Yes, फेवरेट sir. फूड अगर देंगे, विच फूड इज नोन एज ए विच फूड इज कंसिडर्ड एज ए फेवरेट फूड ऑफ द एलिफेंट, तो वहां पे आपका शुगर केन ही होगा. ओके. नाउ मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर सलोनी जायसवाल, काजल वर्मा आप एक बार यहां से पढ़िए बेटा. माइक ऑन करिए. स्टार्ट योर माइक फर्स्ट. काजल वर्मा, स्टार्ट योर माइक एंड रीड फ्रॉम हियर. Frog eat fleas and out. आपको पढ़ना नहीं आ रहा है. इसको फ्लीज पढ़ रही हो, यह फ्लाई, ये आउट पढ़ रही हो, यह है अदर. अभी ध्यान से सुनिए. सोनाक्षी पाल आप पढ़िए. सर मेरे फादर का फोन आ रहा था. कोई बात नहीं, वेट करिए. सोनाक्षी पाल. Frogs eat flies and other small insects. Lion snakes and eagles eat other animals. ओके. फ्रॉग ईट फ्लाइज एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स. जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स को तो आप लोग जानते हैं ना, मेढक. Yes, sir. जो फ्रॉग्स क्या होता है? फ्रॉग्स ईट फ्लाइज. ये फ्लाई क्या होता है? FLY. फ्लाई मीन्स क्या होता है? मक्खी. और फ्लाइज मतलब कई सारी मक्खियां. फ्रॉग ईट फ्लाइज. फ्रॉग्स जो है वो मक्खियों को खाते हैं. एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, और छोटे और दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. जो फ्रॉग्स हैं वो किसको किसको खाते हैं? वो फ्लाइज को भी खाते हैं एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स. और जब लायन की अगर बात करें तो लायन जो है, स्नैक्स है एंड ईगल्स है, ये सारी चीजें.
लायंस, स्नैक्स एंड ईगल्स ईट अदर एनिमल्स। जो लायन है, स्नेक्स हैं और ईगल्स हैं, ये सारे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को यानी अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं। स्नेक्स को, फ्रॉग्स को तो स्नैक भी खा लेता है ना। Yes, sir. Yes, sir. लायन तो बहुत सारे लोगों का शिकार कर लेता है। नाउ come to the next paragraph. Kanish Fatima. Pigeon eat seeds While while parrots eat nut. ये आप क्यों नहीं पढ़ पा रही है? व्हाट इज दिस PARROTS? Fruits and seeds. Kanish Fatima, what is this? Sparrows. आपको अभी बताइए, इसको नहीं पढ़ना आया? PARROTS, पैरोट्स बोल रही हो। पैरोट्स मीन्स क्या होता है? क्या लिखा है काजल वर्मा? आप इसको बताइए, व्हाट इज दिस? Sir, parrots. पैरेट, पैरोट्स पढ़ रही हैं। इसको नस्ट पढ़ रही हैं, NUST, नस्ट, नस्ट कर दिया। NUT पहले आ रहा है, आधा सा पहले आ रहा है। एस ना होता तो NUT नट होता, और एस भी है तो नट्स हो गया। तो आप नष्ट पढ़ रही हैं, इस तरीके से रीडिंग होती है। ध्यान से सुना करिए जब कोई दूसरा पढ़े। ऋषभ तिवारी जरा आप पढ़िए, इसके बाद मैं कनिष्क फातिमा को फिर से बोलूंगा पढ़ने के लिए। ऋषभ तिवारी, रीड फ्रॉम हियर। Pigeons eat seeds while parrots eat nuts, fruits, and seeds. Hummingbirds suck nectar from flowers. ह्यूमिंग नहीं है बेटा, हमिंग है। हमिंग बर्ड्स का नाम भी आपने सुना होगा। Yes. बेटा होता क्या है? पिजन्स ईट सीड्स। जो पिजन्स हैं, पिजन्स मीन्स क्या होता है? कबूतर। जो कबूतर हैं वो क्या खाते हैं? दे ईट सीड्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब खेतों की सिंचाई होती है तो मेनी पैरट्स कम एंड सिट इन द फील्ड। आप लोगों के मन में कभी आया कि ऐसा क्यों होता है? वाई पिजन्स कम एंड सिट इन द फील्ड? खेतों में क्यों बैठते हैं जब खेतों की सिंचाई हो रही होती है? अभी गेहूं की सिंचाई हो रही थी तो भी 2-4 पैरट्स बैठे हुए थे, मैंने देखा। लगभग दिख ही जाते हैं। मोस्ट ऑफनली यू वुड बी सीइंग। एक्चुअली पिजन्स ईट सीड्स। जो पिजन्स हैं वो सीड्स को खाते हैं। अब सीड्स मतलब क्या होता है? Bees. बीज। Seeds. वही करते हैं, Seeds. जब सिंचाई करते हैं तो आपका जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ सीड्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ। तो उन्हीं सीड्स को खाने की कोशिश करते हैं। पिजन ईट सीड्स व्हाइल पैरट ईट्स नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जो पैरट है वो नट्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है एंड सीड्स भी खाता है। नट्स मतलब समझ रहे हैं? नट्स मतलब अखरोट, ठीक है। Yes, sir. फ्रूट्स यानी फल भी खाता है, सीड्स यानी बीजों को भी खाता है। वाइल हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब हमिंग बर्ड क्या अनाज खाता है, रोटी खाता है, क्या करता है? हमिंग बर्ड सक नेक्टर। वो नेक्टर होता है ना, फ्लावर, यानी नेक्टर किसे बोलते हैं? आपका फूल का जूस होता है एक तरीके से, ठीक है। फूलों का Yes. जूस होता है, यानी एक तरीके से आपका कोई फ्लावर्स है तो उसके अंदर का जो रस होता है उसको वो सक कर जाता है हमिंग बर्ड। सक मतलब चूसना, ओके। Yes, sir. तो हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो हमिंग बर्ड्स है वो जो फ्लावर्स के रस होते हैं या उनके जूस होते हैं उनको सक करता है। अब बात करते हैं बियर्ड्स की। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की बारी बारी से बात की जा रही है, आप सभी को ये ध्यान रखना है। पिजन के बारे में भी बात हो गया। पिजन हाउ, व्हाट इज द ईटिंग हैबिट ऑफ पिजन, पैरेट, हमिंग बर्ड, तीन एनिमल की बात हुई यहाँ पे ना। फ्रॉग्स की बात हो गई है, लायन, स्नैक्स एंड ईगल्स यानी करीब 7-8 हो गए हैं। एलिफेंट की बात की गई है, स्क्वायरल एंड रैबिट की बात की गई है। करीब 8-10 एनिमल्स की बात की जा चुकी है कि व्हाट इज देयर ईटिंग हैबिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी बियर के ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिव्यांशी वर्मा,
आप पढ़िए पहले। Bears like to eat plants and fish, while crows eat brains and flesh of other animal. बेटा एक वर्ड आप लोग बराबर, कई सारे बच्चे बराबर गलत पढ़ रहे हैं। WHILE, ये क्या, इसको क्या पढ़ा है दिव्यांशी आपने? WHILE क्या पढ़ा है ये? क्या पढ़ा है आपने, जरा बताइए। वाइल है ये, व्हील नहीं है। व्हील क्या होता है? अभी यहाँ पे भी लिखा था WHILE, वाइल। अभी यहाँ पे भी मैंने पढ़ाया WHILE, वाइल। ये वाइल वर्ड हमेशा आता है और आपको बोलने में भी कई बार यूज करना चाहिए। वाइल मीन्स होता क्या है? जबकि वाइल मीन्स होता है जबकि। अब जबकि का यूज कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऋषभ तिवारी हमेशा होमवर्क कंप्लीट करते हैं, जबकि सलोनी जायसवाल रेगुलर होमवर्क नहीं भेजती। जब आप तुलना कर रहे होते हैं तब वाइल का यूज कर सकते हैं। पिजन सीड्स, पिजन है वो सीड्स को खाता है, जबकि पैरेट नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स तीनों को खाता है। इसी तरह बियर्स लाइक टू ईट प्लांट्स, बियर्स जो है वो प्लांट्स को खाना पसंद करता है। एंड फिश, बियर लाइक्स टू ईट प्लांट्स एंड फिश, जो बियर्स है यानी जो भालू है वो क्या, उसको क्या खाने में पसंद है? दे लाइक टू ईट प्लांट्स एंड फिश, वो पौधे और मछलियों को खाना पसंद करते हैं। वाइल, जबकि जो क्रोज हैं, ये क्रो मीन्स जानते हैं क्या होता है? कौवा, CROW, क्रोज मतलब कई सारे कौवे होते हैं। दे लाइक टू ईट ग्रेन्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये ग्रेन मीन्स क्या होता है? सर अनाज। अनाज। जो कौवे होते हैं दे लाइक टू ईट ग्रेन्स यानी अनाज खाना पसंद करते हैं। एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये फ्लैश मीन्स क्या होता है? फ्लैश मीन्स होता है मांस, चर्बी। मीट मीन्स मांस, अभी आप लोग जानते थे ना, लेकिन जो खाने वाला मांस होता है ये मीट नहीं, ये फ्लैश होता है, जो ये जानवर खाते हैं, चर्बी। दैट मीन्स क्रो लाइक टू ईट ग्रेन्स, जो आपके छतों पे कई बार फैलाया जाता है तो उसको कौवे खा जाते हैं। कुछ नहीं पाते तो कहीं पे अगर मांस वगैरह पड़ा है अदर एनिमल्स के, तो उनके मांस को भी खाना कौवे पसंद करते हैं। समझ में आया? तो फ्लैश मीन्स क्या हुआ? फ्लैश मीन्स क्या हुआ? फ्लैश मीन्स मांस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आपका लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हु विल रीड? सलोनी चौहान, माइक ऑन करिए। सलोनी इज नॉट कनेक्टेड वेल। राशिधर द्विवेदी, बेटा आप अपना माइक ऑन करिए। राशि जल्दी से। Animals eat grass and leaves. They first swallow their food and fill their stomachs. Later, they bring the food back to their mouth and chew the food. This method. सलोनी चौहान ने बाद में पढ़ाया है, उसके बाद राशिधर द्विवेदी ने कुछ भी नहीं बोला है। राशि, मैं आपसे बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्लास से बात करो या आपके पेरेंट्स के पास फोन करूँ तुरंत? यहाँ से पढ़िए। Cows, buffaloes, giraffes, and camels eat grass and leaves. They first swallow their food and fill their stomachs. Later, then bring the food back to their mouth and chew the food. The method of eating is called chewing the cud. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। काउस, बफेलोस, जिराफ।
काऊ यानी कि गाय, वेफेलोस भैंस, जिराफ, जिराफ को आप जानते ही हैं। सलोनी जायसवाल, आप Yes, लिखने sir. में बिजी हो बेटा, आपको जब पढ़ाया जा रहा है तब आप पूरा कर रही हो होमवर्क। ये कौन सी आदत है? किसको बेवकूफ बना रही हो? जब अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप कुछ और छाप रही हो। पढ़ने के समय पढ़ाई करना चाहिए या लिखना चाहिए? सर पढ़ना चाहिए। क्या कर रही हो फिर? कभी होमवर्क भी नहीं आता टाइम से तो होमवर्क ही कंप्लीट करने लगोगी। अभी उठा करके जैसे क्लास खत्म होगा तुरंत रख देना बैग में, पूरा हो जाएगा अपने आप। कल फिर जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तब फिर आप निकाल लेना, फिर पूरा करने लगना। ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है? नो सर। ढंग से पढ़ाई किया करिए। रखिए, अभी बाद में कंप्लीट करिएगा, ठीक है? अभी जब आपकी क्लास खत्म हो तो उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। काउस, बफेलोज, जिराफ्स एंड कैमल्स। जो काउस हैं, बफेलोज हैं, जिराफ हैं, कैमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं? दे ईट ग्रास एंड लीव्स। ये घास और पत्तियों को खाते हैं। दे फर्स्ट, अब इनके ईटिंग हैबिट को आप लोग जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दे फर्स्ट सॉलो। सॉलो मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? सॉलो मीन्स निगलना। क्या होगा? निगलना। सॉलो देयर फूड। ये सबसे पहले दे फर्स्ट सॉलो देयर फूड, वो अपने भोजन को सबसे पहले निगल जाते हैं। वो कूचते नहीं, दांत से आपको उसको पीसते नहीं है, ग्लाइंड नहीं करते। दे डू नॉट ग्लाइंड द फूड्स फर्स्ट इन द माउथ। वो जैसे मुख में आप रखेंगे, दे विल सॉलो देयर फूड फर्स्ट। वो सबसे पहले अपने उस फूड को, चाहे आप घास दें या पत्तियां दें, आप अनाज भी देते हैं कई बार, व्हाट दे डू, जस्ट दे सॉलो देयर फूड। उसके बाद क्या करता है, एंड फिल देयर स्टमक्स, और अपने स्टमक को भर लेते हैं। और उसके बाद लेटर, लेटर मतलब बाद में, दे ब्रिंग द फूड बैक टू देयर माउथ। वो फिर उसके बाद अपने स्टमक में से उस माउथ को, उस फूड को, जो उनके स्टमक में जो फूड है, उस फूड को अपने माउथ में लेके आते हैं। जो जब उनके स्टमक में जाता है फूड, तो वो फूड नहीं बन रहता, वो कड के नाम से फिर जाना जाता है। जब तक बाहर रहता है तब तक फूड, लेकिन जैसे उन्होंने निगला और ये गाय, भैंस, जिराफ, कैमल्स के स्टमक में अगर चला गया, जो एनिमल्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनके स्टमक में चला गया, तो वो कड के नाम से जाना जाता है। फिर क्या करते हैं, वो स्टमक में से यानी कड को अपने मुख में बाद में दोबारा लाते हैं, फिर कूच कूच के उसको खाते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, गाय है, भैंस है, आपका Yes, sir. जो जहाँ पे चारा खाती हैं, हम लोग के गांव में हम तो आसानी से देख पा रहे होंगे आप लोग, कि जब चारा खाती हैं तभी नहीं, जब आप वहां से हटा दें, हौदी या जहाँ पे भी आप गाय बांधी जाती हैं, वहां से जब हटा दें तब भी उन लोग का मुंह चलता रहता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलता रहता है। एक्चुअली चलता रहता है। वो क्यों चलता रहता है? क्योंकि जो उनके स्टमक में जो फूड है, जो उन्होंने सॉलो किया था, वो वापस अपने मुंह में ला रहे हैं, कूच कूच के खा रहे हैं, वो च्यू कर रहे हैं। एक्चुअली लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक टू देयर माउथ। वो अपने स्टमक में से जो फूड है उसको अपने माउथ में दोबारा लेके आ रहे हैं, एंड च्यू द फूड, और उसको चबा रहे हैं, इसीलिए वो मुंह चलाते रहते हैं। समझ में आया? यस सर। एंड दिस मेथड ऑफ Yes, ईटिंग sir. इज कॉल्ड, और इस तरह की जो मेथड, जो इस तरह की खाने की प्रणाली है, दिस मेथड ऑफ ईटिंग, जो मेथड ऑफ ईटिंग है, जो खाने की प्रणाली है, वो क्या कहलाती है? च्यूइंग द कड। फूड नहीं, च्यूइंग द कड। ये कड कब बन जाता है? जब पशु, जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, हर हर तरह के एनिमल नहीं, ओनली ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स, वो घास को पहले निगल जाते हैं अपने स्टमक के अंदर, तो वो फूड यानी वो घास क्या, किस किस नाम से फिर जाना जाने लगता है? कड के रूप में। तो उसी कड को दोबारा माउथ में लाते हैं, चबाते हैं बाद में। ठीक है, Yes. यस सर। सभी को ध्यान रहेगा ना? यस सर। Yes, sir. Now talk about the insects, eating habits of insects. अब eating habits of insects के बारे में कौन बचा है, कौन पढ़ेगा? Who did not read anything as of now? चलिए, कोई भी नहीं बचा है, सभी लोगों ने पढ़ा है लगभग। ऋषभ तिवारी, जल्दी से आप भी पढ़िए और इसका मतलब भी समझाइए, हिंदी भी। Sir, insects like bees and butterflies suck nectar from flowers. Similarly, mosquito
Mosquitoes suck blood from of animals. इसका मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज, इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, इसका मतलब क्या हुआ? सर सर वो कीड़े जो बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लावर से नेक्टर। बीज मीन्स होता क्या है? सर मधुमक्खी। बीज मतलब मधुमक्खी होता है। बटरफ्लाइज तितलियां, सर तितलियां। तितली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हु विल ट्राई टू ट्रांसलेट दिस वन इन हिंदी? नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू। दिव्यांशी वर्मा, एक बार कोशिश करिए बेटा। कर सकती हैं, गलत सही बता जाएगा। राशिदर द्विवेदी, आप इसको ट्रांसलेट करें। सर जो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ होती हैं वो फ्लावर से रस निकाल के अपने अंदर ले लेती हैं। जो इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई, आप लोग कहते हैं ना मैम लाइक दिस, मैम लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस बहुत बोलते हैं स्कूल में। वो लाइक दिस मतलब यही, लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। इंसेक्ट्स यानी इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? ऐसे कीड़े मकोड़े, यानी ऐसे कीड़े, कीड़े लाइक बीज एंड बटरफ्लाईज, यानी कीड़े जैसे कि कीड़े लाइक बीज एंड बटरफ्लाई, ऐसे कीड़े। किस तरह के कीड़े? जो बीज और बटरफ्लाई जैसे कीड़े, बीज यानी मधुमक्खियां और तितलियों जैसे जो कीड़े होते हैं, दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वे सक करते हैं नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। सक मीन्स क्या होता है? नेक्टर का मतलब क्या होता है? मैंने अभी भी बताया है। सक मीन्स क्या होता है? चूसना। चूसना। नेक्टर, नेक्टर, नेक्टर क्या है? सर फूलों का रस। फूलों का रस। फूलों का रस। ठीक है, वेरी गुड। फूलों का रस। फूलों का रस। फूलों का रस या मधु, जो कुछ भी आप कहें। इंसेक्ट्स लाइक बीज, बीज तो मधु, आप मधु तो ही तो निकालते हैं ना, वो फूलों के ही मधु होते हैं जो बीज निकाल के इकट्ठा करती हैं। तो वो इतनी मेहनत करती है कि फ्लावर से वो पूरे नेक्टर को चूस चूस करके ला करके इकट्ठा कर दी और आदमी को ला करके सूंघा जाता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाईज, बीज और बटरफ्लाईज की तरह के जो कीड़े होते हैं, यानी मधुमक्खियां या तितलियों जैसे जो कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, ये फ्लावर्स के रस को, फ्लावर्स के मधु को, फ्लावर्स के अंदर के जूस को सक करते हैं, चूस जाते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरीके से मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज होता है, मॉस्किटो मीन्स क्या होता है? मच्छर। क्या करते हैं? मॉस्किटोज का जो मॉस्किटो वो दूसरे एनिमल्स या ह्यूमंस के भी ब्लड को सक करता है। यानी मॉस्किटो का भोजन क्या है? ब्लड। हाउ दे ईट? चबा के खाते हैं या निगल के खाते हैं? नहीं, मॉस्किटो जो है वो सक करते हैं। क्या करते हैं? दे सक ब्लड ऑफ एनिमल्स या ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ईटिंग हैबिट्स सभी को पता चल गया? यस हैबिट सर। में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, खाने के भी कई सारे तरीके हैं। खाने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि कई बार बोला गया दे ईट, वो चबा के खाना। च्यू, च्यू मीन्स होता है चबाना। सॉलो बताया गया, सॉलो मीन्स क्या होता है? सॉलो मीन्स क्या क्या हो जाता है? निकलना। निकलना। तक कुछ जो इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई, वो कैसे खाते हैं? वो सक करते हैं। तो सक मीन्स क्या होता है? सर चूसना। चूसना। ठीक है। और एक आपका जो चबा के खाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर च्यू।
Sir, आप chew. क्या करते हैं? Sir, chew. What is the habit of human beings Sir, of chew. eating? What is the eating habits of human beings? आप लोग का, आपका eating habit क्या है? कौन बताएगा कैसे खाते हैं? क्यों? Sir, we chew the food. Yes, sir. क्या? Sir, we chew the food. च्यू, केवल च्यू करते हैं, सॉलो नहीं करते? सॉलो भी तो करते हैं। Swallow भी करते. Yes, sir. Chew and swallow. बेटा हम पहले च्यू करते हैं फिर उसको सॉलो कर जाते हैं, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ईटिंग एनिमल है उसको, Yes, sir. जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो बिना च्यू किए पहले वो सॉलो कर जाते हैं, बाद में जो सॉलो किया हुआ फूड होता है, जो सॉलो किया हुआ कड होता है, उसको मुंह में ला करके बाद में चबाते हैं, यानी च्यू करते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द ईटिंग हैबिट्स। अभी ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, दे कैन आस्क। अभी आप लोग को करना No, sir. क्या है? इन द एक्सरसाइज सेक्शन लेट अस ट्राई। ऑलरेडी वी हैव टॉक दीज क्वेश्चंस। सभी लोगों ने होमवर्क भेजा है, कुछ बच्चों ने होमवर्क जिन्होंने नहीं भेजा है, ऐसा नहीं है कि मुझे उनका नाम नहीं पता है। सोनाक्षी पाल और भी अदर बच्चे, वो अपना होमवर्क जरूर भेज दीजिएगा कंप्लीट करके। सोनाक्षी अभी आपने भेजा है कि नहीं? जब आप क्लास मिस की हैं अभी, वो वापस भेजा गया था। क्यों सोनाक्षी? डिड यू सेंड योर होमवर्क और नॉट? आई विल चेक। ये लड़की बोलती भी नहीं है, इसको क्लास से बाहर ही करना पड़ेगा, इसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। महिमा बारी का आ गया है होमवर्क, राशिधर द्विवेदी का भी आ चुका है, सलोनी जायसवाल भी कंप्लीट करके अभी भी भेजी हैं। 2:14 पे सोनाक्षी पाल भी भेजी हैं। नीम टू, ठीक है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। 6 का सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, आवाज कट के नहीं जाएगी बेटा। मैं देख रहा था कि हु डिड सेंड द होमवर्क। एवरीबडी हैव सेंड द वर्क, दैट इज गुड। जिन लोगों ने नहीं भेजा है, सोनाक्षी पाल का पूरा वर्क नहीं आया है, बुक्स का वर्क नहीं आया। ऑल्सो यू नीड टू कंप्लीट एंड सेंड द पिक ऑफ योर वर्क। समझ में आया सोनाक्षी? किताब तो है आपके पास, गायब हो गया? सोनाक्षी, डू यू हैव बुक और नॉट? बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे हो जानबूझ के? सोनाक्षी पाल, चलिए ठीक है, आई हैव टू रिमूव इट, शी इज नॉट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर दिस वन बेटा आपका बुक बी में भी जो एक्सरसाइज है, जो बुक बी में जो क्वेश्चंस है, ऑल्सो यू ऑल नीड टू कंप्लीट दैट। तो बुक बी में अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स में आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपके दिए हुए हैं। there are some pick of the animals, you all need to write the types of that animal। आपको ये पहला एनिमल, which type of this animal is this? टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल, एक्वेटिक या एम्फीबियस? किस टाइप का एनिमल है ये? Sir, aerial. एरियल। एनिमल। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ लायन। लायन है तो लायन कैसा, किस टाइप का एनिमल होता है? Terrestrial. किस तरह का? Terrestrial. टेरेस्ट्रियल। So you need to write the terrestrial Terrestrial. animals। आप ऐसे ले जाएंगे ना? सेम में मंकी, मंकी के बारे में क्या लिखेंगे? यस सर। मंकी के लिए क्या लिखेंगे? Sir, arboreal. एबोरियल एनिमल। Arboreal. एबोरियल एनिमल। Arboreal animals, because this मतलब monkey spend most of the time in the trees, on the trees, that is why it's a arboreal animals। okay, आपका इसके बाद जो आता है ये भालू, बियर, ये किस तरह का एनिमल्स होता है? जो बियर है, which type of animal is this? Terrestrial. टेरेस्ट्रियल। बेटा इसी तरीके से आपको सारे एनिमल्स के टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको लिखने हैं, ठीक है? Yes. फ्रॉग आपका किस टाइप का एनिमल है? सर अब Yes.
amphibians. Amphibious. It can live on the land as well as in the water. Frog can live on the land as well as in the water. So that is why it's a amphibian. तो अभी आप इसको कर सकते हैं. Now the question number 2, aerial and arboreal animals के बारे में लिखना है. Write one difference between the following animals. Give one example for each. आपको aerial animals के बारे में और arboreal animals के बारे में difference लिखना है. दोनों के बीच में difference लिखना है. एक एक example भी लिखने हैं. ठीक है, इसको आप लोग कोशिश करिएगा. नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा. That's all for today. क्योंकि आपका समय जा चुका है, तो आपको यहाँ आर्बोरियल एनिमल्स के बीच में डिफरेंस करना है. ओके सर इसमें आज ही भेजना है. हाँ बेटा, ये कंप्लीट करके आप आज ही भेज दीजिएगा. इसको अभी आपका पढ़ा दिया गया. नाउ यू ऑल कैन डू, यू कैन कंप्लीट विद इन 2 or 3 minutes. ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो आप जो भी कंप्लीट कर पाए तुरंत तुरंत आज ही भेज दीजिए, तो मैं अभी चेक कर दूंगा. ओके, यस सर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यस सर. ठीक है बेटा, तो अभी आज का सेशन क्लोज करते हैं. गुड बाय एवरीवन. So goodbye.